Hello guys, I've come with another story. The title of the story is Whisper of the Heart. In the story you will also be able to know a lot of new words. So let's begin to read the story. In the sun-kissed valley of Tuscany, where vineyards sprawled across the rolling hills and ancient olive trees whispered secrets of the past, there existed a world steeped in romance and drama. It was a world where passion flowed like the rivers that crisscrossed the landscape, and where hearts danced to the rhythm of love's sweet melody. At the heart of this enchanting realm stood Villa Cyanetta, a stately manor adorned with ivy-covered walls and fragrant gardens blooming with roses. Within its opulent halls, a tale of forbidden love unfolded, a tale as timeless as the stars that adorn the night sky. Sophia, with her luminous eyes and cascading locks of ebony hair, was the embodiment of grace and elegance. She moved through the halls of Villa Cyanetta with the pose of a queen, her heart yearning for a love that transcended the boundaries of time and space. Jean, with his rugged charm and gentle demeanor, was the epitome of strength and passion. He dwelled in the vineyards beneath the scorching sun, his hands calloused from years of labor, his soul filled with dreams of a brighter tomorrow. Their paths crossed one fateful summer's eve amidst the heady scent of jasmine and the soft glow of candlelight. From the moment their eyes met, they knew that their destinies were intertwined, bound by a love that defied the conventions of their time. But theirs was a love forbidden by society, a love that dared to challenge the expectations of their families and the traditions of their ancestors. With every stolen glance and whispered word, Sophia and Jean risked everything for a chance at happiness in a world determined to keep them apart. As their love blossomed like the flowers in springtime, they found solace in each other's arms, their hearts beating as one in a symphony of desire. But beneath the surface of their idyllic romance lurked shadows of doubt and fear, threatening to tear them apart at every turn. Amidst the whispers of scandal and the disapproving glances of their peers, Sophia and Jean clung to each other with a fierceness born of desperation, their love shining like a beacon in the darkness. But when tragedy struck and their world was torn asunder, they were faced with a choice that would shape the course of their lives forever. In the heart-wrenching finale that spanned the breadth of emotion, Sophia and Jean confronted the demons of their past and the uncertainties of their futures. Their love tested in the fires of adversity, and as they stood amidst the ruins of their one perfect world, they knew that their love was stronger than any obstacle, more resilient than any hardship. For theirs was a love that transcended time and space, a love that echoed through the ages like a melody sung by the stars, a love that would endure for all eternity in the whispers of the heart. The story is a romantic story, of course. By reading we can understand it, but there are a lot of new words here in this text. So let's first try to find out the meaning of this story here, and then try to read the story again and try to find out the meaning of the story. So these are the explanation of the hard words exist in the story. So first word is enchantment. What is the meaning of enchantment? The state of being under a spell, magical delight. तो एक ऐसी स्टेट है, मतलब एंचेंटमेंट मतलब जादुई स्टेट आप मान सकते हो, मैजिकल एक अवस्था, एंचेंटमेंट. Opulent. What does opulent mean? Opulent means rich, luxurious and lavish in appearance or quality. Rich body. Luminous. Luminous means luminous means bright or shining. जो कि कोई भी चीज़ bright हो या फिर shining हो, full of light. That is called luminous. So luminous is another word of bright or shining. Poise. Poise means graceful and elegant bearing in a person. तो एक graceful हो, एक elegant, जो कि एक सुंदरता भरी चाल हो एक पर्सन्स की सुंदरता को या फिर ग्रेसफुलनेस को समझाया जा रहा है यहाँ पर पॉइस में.
डेमिनर, डेमिनर मीन्स अ पर्सन्स आउटवर्ड बिहेवियर और मैनर, एक पर्सन के पर्सनालिटी आप मान सकते हो, पर्सनालिटी का अनदर वर्ड सिनोनिम आप मान सकते हो, दैट इज डेमिनर। एपिटम, अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पार्टिकुलर क्वालिटी और टाइप। एपिटम मीन्स एक परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ पार्टिकुलर क्वालिटी और टाइप, एक प्रतीक जैसा मान सकते हो हिंदी में, हिंदी में इसे कहा जाएगा एपिटम को प्रतीक, इस चीज़ की प्रतीक है। ही इज द एपिटम ऑफ ऑनेस्टी। कलोस्ट, कलोस्ट मीन्स हैविंग स्किन मेड टफ एंड थिक थ्रू वायर स्पेशली ऑन द हैंड्स, मतलब जो कि ऐसे लोग होते हैं जो कि काम करते हैं बहुत, और बहुत काम करते करते जो हाथ का जो स्किन है बहुत ही टफ और रफ बन जाता है, उसको कहते हैं कलोस्ट, स्किन बहुत ही टफ और रफ बन जाना। इंटरवाइंड, इट इम्प्लाइज अ क्लोज कनेक्शन और इंटरकनेक्शन बिटवीन टू और मोर थिंग्स, तो एक दो और ज़्यादा चीज़ों की जो इंटरकनेक्शन है उसको कहा जाता है इंटरवाइंड। आइडियलिक, आइडियलिक मीन्स एक्सट्रीमली हैप्पी, पीसफुल और पिक्चरस्क, मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी स्टेट, द पर्सन हु इज आइडियलिक दैट मीन्स ही इज एक्सट्रीमली हैप्पी। सोलेस, सोलेस मीन्स कंफर्ट और कंसोलेशन इन अ टाइम ऑफ डिस्ट्रेस और सैडनेस, मतलब एक कंफर्ट मिलना, ही इज और दैट पर्सन इज द सोलेस ऑफ माई लाइफ, मतलब मेरे लाइफ की वो जो पर्सन है वो बहुत ही कंफर्ट है, मैं जब भी उस पर्सन के पास जाता हूँ वो मुझे सोलेस कर देता है, मतलब कंफर्ट। सिम्फनी, अ हार्मोनियस कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स स्पेशली वन दैट इज प्लीजिंग टू द सेंसेस, तो सिम्फनी एक हार्मोनियस कॉम्बिनेशन को लिए समझाया जाता है, एक कॉम्बिनेशन जो कि हार्मोनियस हो। फायरनेस, इंटेंसिटी और फेरोसिटी, तो रेजिलेंट मीन्स एबल टू विथस्टैंड और रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट कंडीशंस, तो डिफिकल्ट कंडीशंस को विथस्टैंड करना, मतलब रोकने की जिसके पास क्षमता है, उस क्षमता को कहा जाता है, उस पावर को कहा जाता है रेजिलेंट। और रिकवर, जो कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन ज़िंदगी में आए तो अगर रिकवर हो जाए उस चीज़ से, रिकवर करने की क्षमता हो किसी में अंदर, तो उसे कहा जाएगा रेजिलेंट। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मीन्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्टीज और मिसफॉर्चून को एडवर्सिटी कहा जाता है। मेलोडी, अ सीक्वेंस ऑफ प्लीजिंग साउंड्स दैट एक्सप्रेसिंग अ म्यूजिकल आइडिया, अ ट्यून, तो मेलोडी एक ट्यून के जैसा भी, मतलब बहुत ही सुंदर ट्यून को मेलोडी कहा जाता है। फ्रेग्रेंट, हैविंग ए प्लेजेंट स्वीट स्मेल, मतलब स्वीट स्मेल को फ्रेग्रेंस बोला जाता है। कन्वेंशंस, एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स और प्रैक्टिसेस दैट आर वाइडली एक्सेप्टेड एंड फॉलोड, मतलब प्रथाएं, रीति रिवाज को कन्वेंशंस भी कहा जाता है। एबुलेंट, चेयरफुल एंड फुल ऑफ एनर्जी, तो एबुलेंट किसको कहा जाएगा, जो कि बहुत ही चेयरफुल हो, फुल ऑफ एनर्जी का कहा जाएगा एबुलेंट। एफिमेरल, लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, फ्लीटिंग, मतलब एफिमेरल जो कि एक ऐसा वर्ड है जो कि बहुत ही कम समय के लिए रहता है। यूफोरिया, यूफोरिया मीन्स अ फीलिंग ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट, एक इंटेंस हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट की जो अवस्था है उसको कहा जाता है यूफोरिया। पेंसिव, पेंसिव मीन्स इंगेज्ड इन डीप और सीरियस थॉट, रिफ्लेक्टिव, मतलब बहुत ही डीप और सीरियस थॉट में किसी को आप देखे होंगे, दैट मीन्स दैट पर्सन इज इन पेंसिव सिचुएशन। सेरेनिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग काम, पीसफुल एंड अनट्रबल्ड, सेरेनिटी मीन्स एक व्यक्ति जो कि बहुत ही काम हो, पीसफुल हो और बहुत ही अनट्रबल्ड हो। इंट्रीग, इंट्रीग मीन्स अराउज द क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट ऑफ फैसिनेट, इंट्रीग मीन्स बहुत ही क्यूरियोसिटी होना किसी भी चीज़ के लिए, फैसिनेट करना, उसको कहते हैं इंट्रीग। आई एम इंट्रीग्ड बाय हिज वर्ड्स, उसकी बातों से मुझे बहुत ही इंटरेस्ट मिला। बिट्रेयल, द एक्ट ऑफ बीइंग डिसलॉयल और अनफेथफुल स्पेशली टू अ पर्सन्स ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, तो बिट्रेयल के मतलब तो सभी को ज़्यादातर को पता ही होगा। बिट्रेयल मीन्स एक पर्सन्स जो कि डिसलॉयल है, डिसलॉयल किया आपको, बिट्रे किया, धोखा देना। एंडियरमेंट, एंडियरमेंट मीन्स अ वर्ड और एक्सप्रेशन ऑफ अफेक्शन और लव, तो एक वर्ड है जो कि हम लोग वर्ड और एक्सप्रेशन ऑफ अफेक्शन और लव, तो अफेक्शन और लव को जो जिस भाषा से हम लोग डिस्क्राइब करते हैं उसको कहते हैं एंडियरमेंट। एंडियरमेंट मतलब बहुत ही प्यार दिखाना, लव और अफेक्शन दिखाना। टेम्पेस्चुअस, टेम्पेस्चुअस मीन्स कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग एंड टर्बुलेंट इमोशंस और कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट्स, तो एक इमोशंस है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड टर्बुलेंट इमोशंस है और कॉन्फ्लिक्टिंग एलिमेंट्स। रेजोनेट, एवोक और सजेस्ट इमेजेस, मेमोरीज और इमोशंस, स्ट्राइक अ कॉर्ड विथ। प्रोएस, एक्सेप्शनल और सुपीरियर, प्रोएस मीन्स एक्सेप्शनल हो और सुपीरियर हो, ऊंची क्षमता वाली जो लोग होते हैं उनको कहते हैं हम लोग प्रोएस, मतलब जिसके पास अगर बहुत ही ऊंची क्षमता हो या फिर एबिलिटी हो, स्किल हो किसी भी चीज़ में, वो प्रो है। प्रो बोला जाता है, प्रो इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रोएस, इज़ प्रो इन गेम।
He is a pro in karate, right? Melancholy, a feeling of pensive sadness. Melancholy means बहुत ही sad situation को समझाने के लिए हम लोग melancholy का इस्तेमाल करते हैं. पेंसिव सैडनेस मतलब बहुत ही सैड जो कि सिचुएशन को समझाने के लिए हम लोग मेलानकोली बोलते हैं. इन्फैचुएशन मीन्स वी ऑल नो अबाउट दिस वर्ड्स, एन इंटरेस्ट एन इंटेंस बट शॉर्ट लिव्ड पैशन और एडमिरेशन फॉर समवन और समथिंग. इंट्रिकेसी मीन्स द क्वालिटी ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट. मतलब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ज़िंदगी में जब आए तो उसकी व्यक्ति की जो कि स्टेट हो, अवस्था हो, उसको समझाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इंट्रिकेसी. रेवरी, रेवरी मीन्स डे ड्रीम बोला जाता है. रेवरी मीन्स दिन में देखी जाए सपने को बोला जाता है रेवरी. कोई अगर अपने ही ख्यालों में मस्त हो, अ स्टेट ऑफ बीइंग प्लेजेंटली लॉस्ट इन वंस थॉट्स, तभी हम लोग उसको कह सकते हैं कि क्या तुम दिन में सपने देख रहे हो या फिर यू आर इन रेवरी. आर्डर मीन्स एंथुजियाज्म और पैशन और फर्वर. एंथुजियाज्म और पैशन को समझाने के लिए आर्डर का इस्तेमाल करते हैं. वी हैव सीन द explanation of the meaning of these hard words from the text. So now let's try to read the text again and try to find out the meaning of the text. So let's try to read the story again and try to find out the meaning of the story. In the sun-kissed valley of Tuscany, where vineyards sprawled across the rolling hills and ancient olive trees whispered secrets of the past, there existed a world steeped in romance and drama. तो एक जगह थी, एक वैली के किनारे एक जगह थी जिसका नाम था टस्कैनी, जहाँ पर बहुत ही वाइनियर्ड्स था. मतलब एक खूबसूरत जगह की डिस्क्रिप्शन दी गई है यहाँ पर, जहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती थी, पहाड़ भी थी, वाइनियर्ड्स भी थी. वाइनियर्ड्स मतलब अंगूर का पेड़ जो होता है. एंड एंशिएंट ऑलिव ट्रीज, पुराने ऑलिव ट्रीज भी थी, जो कि जैसे कि ऐसा लगता था कि सीक्रेट्स ऑफ द पास्ट, पास्ट की कोई सीक्रेट बोल रहा हो हमें. मतलब एक मैजिकल एनवायरनमेंट की सृष्टि कर रही है यहाँ पर लेखक. तो वहाँ पर देयर एग्जिस्टेड अ वर्ल्ड स्टीप्ड इन रोमांस एंड ड्रामा. वहाँ पर एक वर्ल्ड मतलब एक दुनिया थी, जो कि किस चीज़ की दुनिया थी? रोमांस और ड्रामा की. इट वॉज अ वर्ल्ड वेयर पैशन फ्लोड लाइक द रिवर्स दैट क्रिस क्रॉस द लैंडस्केप. एक ऐसी दुनिया थी जहाँ पर पैशन यानी कि लव क्या करती थी? फ्लो करती थी रिवर की तरह जैसा. एंड वायर हार्ट्स डांस टू द रिदम ऑफ लव्स स्वीट मेलोडी. जहाँ पर हार्ट्स भी डांस करते थे किसको? लव की जो स्वीट मेलोडी है, सुंदर गाने से, मतलब लव की जो सुंदर गाना है उसके गाने से हृदय भी डांस करता था, नाचता था. एट द हार्ट ऑफ दिस एन्चेंटिंग रियलम स्टूड विला सैरेंटा. मतलब एक एन्चेंटिंग जो एक सुंदर जगह थी, उसके हार्ट पर मतलब सेंटर पर, इस सेंटर के लिए हार्ट को यहाँ पर बोला जा रहा है. तो उस सेंटर पर रहते थे एक विला जिसका नाम था सैरेंटा. अ स्टेटली मैनर adorned with ivy colored walls and fragrant gardens blooming with roses. तो यहाँ पर एक क्या होता था? मैनर रहता था, एक मैनर था वो विला सैरेंटा नाम का. मैनर मतलब बहुत ही आलिशान बंगलो जैसा मान सकते हो. तो विथ आइवी कवर्ड वॉल्स, आइवी एक पेड़ जैसा होता है जो कि वॉल्स के ऊपर रहता है. हम मतलब वो जो पेड़ है वो वॉल्स के ऊपर ही ग्रो होता है. तो वो वैसी पेड़ से कवर्ड हुआ एक वॉल भी था चारों ओर. एंड फ्रेग्रेंट गार्डन्स ब्लूमिंग विथ रोजेस. तो उस विला के अंदर एक गार्डन भी था जो कि रोज़ गार्डन था, बहुत ही सुंदर फ्रेग्रेंस आता था वहाँ से. विद इन इट्स ऑपुलेंट वर्ल्ड्स, ऑपुलेंट हॉल्स, within its opulent halls a tale of forbidden love unfolded. तो opulent means बहुत ही rich, opulent means बहुत ही rich या फिर wealthy, जो उसके अंदर जो बहुत ही आलिशान, घर के अंदर जो आलिशान हॉल थे मतलब रूम्स थे, उसके वहाँ पर एक टेल ऑफ फॉरबिडन लव अनफोल्डेड, एक कथा खुली लव की, मतलब एक फॉरबिडन लव था. क्यों फॉरबिडन लव? हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसको स्टोरी में देखेंगे. अ टेल एज टेमलेस एज द स्टार्स दैट अडोन द स्काई. स्टोरी उस स्टार की जैसा था जो कि टाइमलेस था, समय के उस पार था. समय को उस समय से इस लव को नहीं मापा जा सकता था. सोफिया विथ अ लुमिनस आइज एंड कैस्केडिंग लॉक्स ऑफ एबोनी हेयर. यहाँ पर एक लड़की की बात की जा रही है जिसका नाम था सोफिया, जिसका आइस था बहुत ही लुमिनस यानी कि चमकदार. एंड कैस्केडिंग लॉक्स ऑफ एबोनी हेयर, जिसका बाल भी बहुत ही सुंदर था, जैसे कैस्केडिंग जैसे ऊपर से नीचे गिरना. और एबोनी हेयर घने काले बाल भी था. वाज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ग्रेस एंड एलिगेंस, वाज द एम्बॉडीमेंट ऑफ ग्रेस एंड एलिगेंस, जो कि
बहुत ही सुंदरता की प्रतीक थे, मान सकते हो। एम्बोडीमेंट मीन्स प्रतीक। शी मूव्ड थ्रू द हॉल्स ऑफ विला सेरेनेटा with the poise of a queen, her heart yearning for a love that transcended the boundaries of time and space। तो वो चलते थे रानी के जैसे चलते थे और उसके हार्ट चाहती थी कि उसके जीवन में कोई लव आए, प्यार आए। जीन, एक लड़की की बात की जा रही है यहाँ पर। विथ हिज रॉक्ड चार्म एंड जेंटल डेमिनर was the epitome of strength and passion। तो जीन एक इंसान था जो कि रॉक्ड चार्म, उसके पास बहुत ही चार्मफुल, एक चार्मिंग इंसान था वो। एंड जेंटल डेमिनर, और उसकी स्वभाव यानी कि पर्सनालिटी, हम लोग पढ़े थे डेमिनर मीन्स पर्सनालिटी, तो उसकी पर्सनालिटी बहुत ही जेंटल था, वो जेंटल इंसान था। वॉज द एपिटम ऑफ स्ट्रेंथ एंड पैशन, जो कि स्ट्रेंथ और पैशन की एक प्रतीक थी। एपिटम मीन्स भी प्रतीक होता है। ही टॉयल्ड इन द वाइनयार्ड्स बीनीथ द स्कॉचिंग सन, हिज हैंड्स calloused from years of labor, his soul filled with dreams of a brighter tomorrow। वो काम करता था कहाँ पर? वाइनियर्स में काम करता था और सूरज की किरणों के नीचे काम करता था, और उसके हाथ काम करते करते बहुत ही सख्त बन चुका था, कलौस्ड बन चुका था। मतलब उसके पास पैशन था कि उसका फ्यूचर ब्राइट होगा इस लड़के के पास। देयर पाथ्स क्रॉस्ड वन फेटफुल समर्स इव। देयर पाथ्स क्रॉस मीन्स सोफिया एंड जीन की जो मुलाकात हुई एक समर्स की इवनिंग में। इव मीन्स इवनिंग, इव मीन्स इवनिंग। एमिड्स द हेडी सेंट ऑफ जैस्मिन एंड द सॉफ्ट ग्लो ऑफ कैंडल लाइट। कब? मतलब इवनिंग में कैंडल लाइट भी था वहाँ पर, तो उसी जगह पर उस जगह पर जब उनकी मुलाकात हुई, मतलब समझो कि जैस्मिन का सेंट भी आ रहा था वहाँ पर। मतलब पूरा रोमांटिक जो एटमोसफियर है वो क्रिएट किया गया है यहाँ पर। फ्रॉम द मोमेंट देयर आइज मेट दे न्यू दैट देयर डेस्टिनीज वर इंटरट्वाइंड। जब भी उसकी दोनों की आँख एक दूसरे से मिली तब भी उनको लगा कि उसकी भाग्य भी जुड़ चुका है। इंटरवीन मतलब जुड़ जाना। बाउंड बाय अ लव दैट डिफाइंड द कन्वेंशंस ऑफ दैट टाइम। तो एक लव की उसकी शुरुआत हुई जो कि डिफाइन करता है कन्वेंशंस, मतलब प्रथाओं की, उस समय की प्रथाओं की को भी डिफाइन करता है। बट देयर्स वाज अ लव फॉरबिडन बाय सोसाइटी। लेकिन उसका जो लव था सोसाइटी को गवारा नहीं था, सोसाइटी नहीं चाहते थे उसकी लव सक्सेसफुल हो उन लोगों की। अ लव दैट डेयर टू चैलेंज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ देयर फैमिलीज एंड द ट्रेडिशंस ऑफ देयर एंसेस्टर्स। एक ऐसी लव थी जो उसकी फैमिली को मंजूर नहीं था, मतलब इसकी ट्रेडिशन के खिलाफ था। जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़े, सोफिया की फैमिली बहुत ही रिच था और वेल्दी था, तो उनकी फैमिली चाहते थे कि उसके फैमिली का जो लड़की हो उसको बड़े घराने में शादी दी जाए। तो ऐसे ही तो प्रथा चलती आ रही है ना। With every stolen glance and whispered word, Sophia and Jean risk everything for a chance at happiness in a world determined to keep them apart। मतलब उनको मुलाकात हुई, बातें हुई, तो सोफिया एंड जीन ने रिस्क ली। किस चीज़ की रिस्क ली? कि उसके हैप्पीनेस के खातिर वो दुनिया से भी भिड़ जाएगा, लड़ जाएगा। As the loved blossomed like the flowers in springtime, they found solace in each other's arms, their hearts beating as one in a symphony of desire। जैसे कि उनकी फ्लावर जैसे मतलब जब उसकी लव एक दूसरे की तरफ खिलता जा रहा था, किसकी तरह? फ्लावर्स की तरह। फ्लावर्स जो स्प्रिंग टाइम में फ्लावर्स खिलती है उसकी तरह उसका लव एक दूसरे के प्रति बढ़ता ही जा रहा था। दे फाउंड सोलेस इन ईच अदर्स आर्म्स, वो एक दूसरे के आर्म्स में कंफर्ट पाते थे, चैन पाते थे। देयर हार्ट्स बीटिंग एज इन सिम्फनी ऑफ डिजायर, तो उनके हार्ट भी एक ही तरीके से बजते थे। But beneath the surface of their idyllic romance lurked shadows of doubt and fear, threatening to tear them apart at every turn। तो उसकी जो आइडियलिक रोमांस थी उसके पीछे भी एक शैडो था, एक छाया था। किस चीज़ की? डाउट की और फेयर की। मतलब क्या होगा उसकी प्यार अगर उन लोगों की प्यार अगर सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि लोग उसके प्यार के विरुद्ध थे। Amid the whispers of scandal and the disapproving glances of their peers, मतलब उसकी जो आसपास के लोग भी थे उन लोगों को शक की नज़र से देखते थे, मतलब डिसअप्रूविंग करते थे, डिसअप्रूव करते थे, मतलब पसंद नहीं करते थे, ऐसे नज़रों से उन लोगों को देखते थे, कानाफूसी होती थी उसके बारे में, उन लोगों के बारे में। सोफिया एंड जीन clung to each other with a fireless bond of desperation, their love shining like a beacon in the darkness। लेकिन उन दोनों को उसको कोई भी परवाह नहीं थी, उन दोनों को एक दूसरे के साथ क्लंग थे, मतलब जुड़े हुए थे, एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। उनकी लव ऐसी थी जैसे कि लव शाइनिंग लाइक ए बेकन इन द डार्कनेस, डार्कनेस में एक रोशनी जैसा ही था उनका लव। बट व्हेन ट्रेजेडी स्ट्रक एंड द वर्ल्ड वाज टॉर्न असंडर, दे वर फेस्ड विद अ चॉइस दैट वुड शेप द कोर्स ऑफ देयर लाइव्स फॉरएवर।
जब कोई एक दुर्घटना घटी उसके उन लोगों के जीवन में, जब उसका लव जो था और उनका दुनिया था एकदम बिखरने ही वाला था, दे वर फेस्ड विद चॉइस, वो लोग एक चॉइस लेने में मजबूर हुए। मतलब वो लोग एक चॉइस लिए जो कि उसकी लाइफ को हमेशा के लिए बदलने वाला था। इन हार्ट रेंचिंग फिनाले दैट स्पेंट द ब्रेथ ऑफ इमोशन, Sophia and Jean confronted the demons of their past and the uncertainties of their future। मतलब अंत में जो कि हार्ट रेंचिंग मतलब हार्ट को निचोड़ने वाला, रेंचिंग मतलब निचोड़ने वाला, जब अंतिम समय आया, घड़ी आया उसकी लव के, तब सोफिया एंड जिन ने सारे बाधाओं को कन्फ्रंटेड कर दिया, मतलब सारे बाधाओं को पार कर दिया, मतलब जीत लिया। डेमोन्स ऑफ देयर पास्ट, जो कि उसके पास्ट के जो इविल्स चीज़ें थे, डेमोन्स थी, एंड द अनसर्टेनिटीज ऑफ देयर फ्यूचर, फ्यूचर की जो अनसर्टेनिटी थी उस सभी बाधाओं को वो पार कर लिए। देयर लव टेस्टेड इन द फायर्स ऑफ एडवर्सिटी, उनकी लव जो थी दुर्दशाओं में उसकी लव जली, फायर्स ऑफ एडवर्सिटी की फायर में उसकी लव को टेस्ट किया गया, उन लोगों की लव को। एंड एज दे स्टूड एमिस्ट द रुइंस ऑफ देयर वंस परफेक्ट वर्ल्ड, दे न्यू दैट देयर लव वाज स्ट्रॉन्गर देन एनी ऑब्स्टेकल, मोर रेजिलेंट देन एनी हार्डशिप। जब उसके पास इन सारे बाधाओं को पार करके जब उसका उन लोगों का लव खिला, मतलब सक्सेसफुल हुआ, वो लोग के पास एक कॉन्फिडेंट आया, वो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग महसूस करने लगे अपने आप में कि उसकी लव जो सारे बाधाओं को भी पार कर सकता है। मोर रेजिलेंट देन एनी हार्डशिप, कोई भी हार्डशिप से उनकी लव और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई भी बाधा उसकी लव को हरा नहीं सकता। फॉर देयर्स वॉज अ लव दैट ट्रांसकेंडेड टाइम एंड स्पेस, उसकी लव ऐसी थी जो टाइम एंड स्पेस की जो कि सीमाएँ है उसको भी पार कर गई थी। अ लव दैट इकोड थ्रू द एजेस लाइक अ मेलोडी सॉन्ग बाय द स्टार्स, अ लव दैट वुड endure for all eternity in the whispers of the heart। उसकी लव एक मिसाल बन गई उन लोगों की लव जो कि बरसों तक लोगों में गूंजता रहा। So this was really a very interesting story, a love story or romantic story you can say। So I hope you liked the story, and if you like and subscribe to my channel। So let's meet to the next video।